Hello everyone, this is Sanji Chhabda over here. Welcomes you all. Today I am going to discuss about the irrational numbers and a result based on these irrational numbers. So let's get started. First are irrational numbers. Irrational numbers, if I talk about, is something which cannot be represented in the form of p upon q. Like you have the rational numbers जो कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं p upon q. उसमें p और q क्या होते थे, इंटीजर्स होते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता. अगर ये केस की बात की जाए तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर. बट अगर हम ऐसे नंबर्स जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट देम एज ऑफ पी अपॉन क्यू, उन पर्टिकुलर नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है. दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन की. जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग. एक तो वो कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे, एंड साइड बाय साइड नॉन रिपीटिंग, और वी कैन से नॉन रिकरिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू सी, इफ़ आई एम राइटिंग 0.10001056, so on. This means it is non-terminating. Is there any set of digits which are repeating? No. So that means it is non-terminating and non-repeating. So it is an example of an irrational number. Something, if I am writing 1 upon 2, this is expressed as the form of p upon q. So this is a rational number. It's not an irrational number. Moreover, what sort of the irrational numbers do we have? For an example, if I write, this is an under root sign in this. If we have a non-perfect square, then we say it is an irrational number. For an example, if I am writing under root 5, so this is a non-perfect square, so under root 5 will become your irrational number. If I am writing under root 4, this can be written as 2, which is expressed as 2 upon 1, so which is a rational number. So in the case of an under root, if you have a non-perfect square, then only we say it is an irrational number, else we say it is a rational number. Further, if you have a cube root, this is a cube root, there has to be a non-perfect cube. क्या होना चाहिए हमारे पास, non-perfect cube. For an example, if I am writing it like this is a case for rational number, because this is equal to 7, which can be expressed as 7 upon 1. Non-perfect cube, it is going to be an irrational number. For an example, this is a case for irrational numbers. One more example, we have pi. Pi is an irrational number, though at times we write it like what? We say pi is equal to 22 upon 7, but actually it is nearly equal to. This is a rational number, but if I talk about the pi, it is irrational number. Here we have one theorem. What is the theorem over here? It says, अगर हमारे पास एक p प्राइम नंबर है, ठीक है, एक प्राइम नंबर है p और एक a पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है. अगर इस प्राइम नंबर ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया, कह रहे हैं पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हमें ये शो करना है कि पी किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा. सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेट पी एक प्राइम नंबर दिया हुआ है एंड ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये दिया हुआ है. सच दैट कंडीशन है, इफ़ दिया हुआ है ना, सच दैट जो पी है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है जो पी होगा वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. अच्छा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो भी होता है हमारे पास, वॉट एवर सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर वी आर हैविंग, फॉर एग्जाम्पल 121, 130, कोई भी इंटीजर है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अगर हमने कहा कि हमने ए को ले लिया, किसके इक्वल है, p1 p2 एंड सो ऑन टिल pn. ठीक है, हमारे पास जो ये p1 है, p2 है या फिर pn है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली दीज आर योर प्राइम्स. ठीक है,
एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट, ये ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे सेम ही होंगे एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे डिफरेंट होंगे। देन ए स्क्वायर की अगर हम बात करें, अगर ए है तो ए स्क्वायर तो ए इंटू ए हो सकता है। ए की वैल्यू क्या है, P1 P2 एंड Pn, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी P1 P2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, Pn तक, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो P1 का भी स्क्वायर हो रहा है, P2 का भी स्क्वायर हो रहा है एंड सो ऑन, कहाँ तक, Pn के स्क्वायर तक। अब हमारे को गिवन था ना P डिवाइड्स, क्या बोल रहे हैं वो, ए स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ किसका है, मतलब कोई ना कोई फैक्टर है तभी तो डिवाइड कर पा रहा है, अदरवाइज तो वो डिवाइड ही ना कर पाता। अगर P एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का तो P इज़ वन ऑफ, या तो P1 है या P2 है या फिर Pn है, ठीक है। सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 एंड सो ऑन टिल Pn, इनमें से कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर है, ये सारे ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसी में से एक होगा जब वो उसको डिवाइड कर रहा। तो इसका मतलब अब अगर देखा जाए ए हमारे पास P1 P2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, P इनमें से एक है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे बीच में P है, A इज़ बेसिकली इक्वल टू P इंटू समथिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, P डिवाइड्स A, दस P डिवाइड्स A स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वॉट कि P इज़ गोइंग टू डिवाइड A ऑल्सो, हेंस प्रूव्ड। हमें यही कहा था एक P कोई भी प्राइम नंबर है और एक A पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो A है पॉजिटिव इंटीजर है तो वो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स लिख सकते हैं हम, P1 P2 एंड सो ऑन, कुछ भी ले लो। हो सकते हैं कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट हो और हो सकता है कि सारे के सारे सेम हों। अब ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर क्या होगा, A इंटू ए होगा, विच मीन्स P1 P2 एंड सो ऑन टिल Pn, तो दूसरे में भी यही आ गया। अब P डिवाइड्स ए स्क्वायर कह रहा है तो इसका मतलब P जो है कोई ना कोई प्राइम फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर भी होगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि P इज़ अ प्राइम नंबर, तो फैक्टर तो है क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, बट प्राइम नंबर है तो वी आर सेइंग इट इज़ अ प्राइम फैक्टर। P इज़ वन ऑफ दीज, क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स तो P1 P2 है। अब P A को डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि A भी तो इसी के इक्वल ही तो है। So if P divides A square, so this will imply P divides A also. So we are going to discuss a question which are based on this particular theorem. So let's see one question over here. It says, prove that under root 3 is irrational. कभी भी proving का question आए in the case of an irrational, सबसे पहले तो उसको consider कर लो कि rational है, contradictory statement लेके चलेंगे. If possible, let under root 3 be a rational number which can be expressed in its simplest form as A upon B, where A and B are co-primes. अच्छा, कोई भी अगर रैशनल है तो हम A और B को को प्राइम्स ले रहे हैं। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। हम ऐसे A एंड B आपके क्या हैं, बेसिकली इंटीजर्स हैं विच आर को प्राइम्स। तो हम ऐसे इंटीजर्स ले रहे हैं जो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर दैन 1। अब साथ के साथ कभी भी डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं होगा, 0। देन नाउ अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू A अपॉन B। दिस मीन्स अंडर रूट 3B इज इक्वल्स टू A। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। अंडर रूट 3B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट 3 का 3 हो गया, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये कह सकते हैं 3
divides 3b square, isn't it? 3 इंटू समथिंग है तो ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा। अब ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर के। दिस एम्प्लाइज व्हाट? 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी हमने प्रॉपर्टी पीछे क्या करी कि अगर कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी क्या करेगा? डिवाइड। सो दिस एम्प्लाइज 3 डिवाइड्स ए since he is prime and 3 divides a square. This implies कि 3 has to divide what? a. ठीक है। अगर 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3 है वो फैक्टर है किसका? a का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग for some integer c। सम इंटीजर क्या ले लिया हमने? c। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, लेट्स से इट्स इक्वेशन 1, पुटिंग a equal to 3c in first we get what? क्या मिला यहाँ से हमें? 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c का स्क्वायर विच मीन्स 9c स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये 3 इधर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो 20 की स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आएगा? 3c स्क्वायर। 3 डिवाइड्स b स्क्वायर सिंस क्यों? 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3c को स्क्वायर को, है ना। अगर वो b स्क्वायर को कर रहा है इसका मतलब इट हैज़ टू डिवाइड व्हाट? 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर वो b स्क्वायर को कर रहा है क्यों? क्योंकि 3 इज अ प्राइम एंड 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दिस विल इम्प्लाई कि 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, इजंट इट? ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने ऊपर क्या अज्यूम किया था कि ये को प्राइम्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that a and b are co-primes, that is they do not have any common factor। contradiction क्यों आई है? क्योंकि हमारी assumption ही क्या थी? गलत। the contradiction arises by assuming that under root 3 is rational, hence अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल। हमने किसी को भी इरेशनल प्रूव करना हो, फॉर्मेट कौन से वाले टाइप के क्वेश्चंस का? जब भी अंडर रूट के अंदर यहाँ पे एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जब भी अंडर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होगा और हमें इसको एक इरेशनल प्रूव करना होगा तो पहले हम उसे रैशनल लेंगे। और रैशनल का फॉर्मेट क्या होता है? a अपॉन बी, और जिसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या होंगे? हमारे पास को प्राइम्स होंगे। ठीक है, को प्राइम्स मतलब जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर दैन 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 3 इंटू समथिंग है तो ये मतलब 3 से डिविजिबल है। अब a स्क्वायर इसी के तो इक्वल है। अगर 3b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब a स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। अगर हमने अभी एक थ्योरम की जिसमें ये कहा था कि अगर कोई प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसको भी प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है a को तो इसका मतलब a जो है वो 3 इंटू समथिंग है। अब वो समथिंग आई टेकन इट एज c, तो उसे स्पेसिफाई कर दिया, कोई भी एक इंटीजर c ले लिया। अब इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जो है वो 3 इंटू समथिंग है, फिर से 3c स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 3 से। तो बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो बी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, बी भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से, बिकॉज ऑफ द सेम। अब
तो 3 डिवाइड्स ए और 3 डिवाइड्स बी, मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमने क्या कर रहा था, ए एंड बी को कोप्राइम्स अज्यूम कर रहा था, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ना, कॉन्ट्रोडिक्शन अराइजेज क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था कि √3 क्या है, रैशनल, बट एक्चुअली √3 इज़ एन इरेशनल। कि अंडर रूट के अंदर कभी भी एक प्राइम नंबर होगा, तो सिमिलरली यू कैन प्रूव कि वो अंडर रूट में जो प्राइम नंबर है, ये पूरा फॉर्मेट, ये क्या हो, इरेशनल नंबर, it's going to be an irrational number. Okay, that's it for today. I hope it is clear to you people. Now we have some more kinds of the questions related to it, which I'll take up in my next video. Thank you so much. Thanks for watching my video. Bye, take care.